अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार का आगाज। वज़ीर आला KCR और वज़रा ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ खुसूसी पूजा में शिरकत की। रिवायती तौर पर बोनम पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर झूठ का पुलंदा। रेलवे रिपेयर शॉप मंजूर करते हुए तेलंगाना अवाम का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर KTR की मोदी पर तनकीद। YSR कड़पा जिले में वज़ीर आला जगन ने लग्जरी होटल्स का रखा संगे बुनियाद। रोजगार के मौक़े फराहम करना आंध्रा हुकूमत का मकसद। वज़ीर आला जगन का बयान। जिला तिरुपति में सड़क हादसा, 6 अफराद बरसरे मौका फौत। SUV ट्रक से जा टकराई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि कोच फैक्ट्री के बजाय रेलवे रिपेयर शॉप मंजूर करते हुए मरकज़ ने तेलंगाना की आवाम का मजाक उड़ाया है। वज़ीर KTR वज़ीर आज़म मोदी की वरंगल में की गई तकरीर पर जवाबी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी करप्शन की बात कर रहे हैं और ख़ुद उनकी पार्टी में जो अंदरूनी करप्शन है उस पर वो खामोश है। उन्होंने कहा कि वरंगल में की गई मोदी जी की तकरीर झूठ का पुलंदा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों के दौरान BJP मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम गिनवाने की बजाय मोदी जी सिर्फ BRS पर तनकीदें करते रहे। उन्होंने कहा कि काजीपेट कोच फैक्ट्री का मुतालबा किया गया था और मोदी जी ने सिर्फ रेलवे रिपेयर शॉप मंजूर की है, जो तेलंगाना अवाम के साथ धोखा है। ఇదే ప్రధానమంత్రి గారు గుజరాత్లోని దహోద్ అనే ప్రాంతంలో 20,000 కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ లోకోమోటివ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నామని చెప్పి పోయి స్వయంగా శంకుస్థాపన చేశారు. దానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ వాళ్ళు కూడా దహోడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లోకోమోటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 20,000 కోట్లతో అని చెప్పి ఎక్కువ రోజులు కూడా కాలేదు, కేవలం సంవత్సరం కిందనే ప్రధానమంత్రి గారు అక్కడ శంకుస్థాపన చేశారు. ఇవాళ ఖాజీపేటకేమో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్తామని చెప్పి తయారు చేస్తాం, మొత్తం ట్రైన్ తయారు చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ ఎంత దుర్మార్గం, ఎంత అన్యాయం అంటే ఒక రిపేర్ షాప్ను, ఒక వ్యాగన్ తయారు చేసే షాప్ను పెడతాం 521 కోట్లతో. నీ రాష్ట్రం గుజరాత్కేమో 20,000 కోట్ల కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పరిశ్రమ, తెలంగాణ పీజనేమో ఈరోజు 521 కోట్లు ముష్టేసినట్టు 521 కోట్లు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటా ముసలి కన్నీరు గారుస్తా అంటే కుదరదు ప్రధానమంత్రి గారు. వాళ్ళ తెలంగాణలో మీరు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వకపోతే మేము మేధా అనే కంపెనీ, వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించిన పెద్దలు యుగంధర్ రెడ్డి గారు, వారి కంపెనీ 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడుతుంది. ప్రైవేట్ రంగంలోని మేధా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏమో 1000 కోట్లతో ఫ్యాక్టరీ పెడితే మరి మేధావి మోడీ గారి యొక్క ప్రభుత్వం 521 కోట్లతో మేమేదో పెడుతున్నామంటే నమ్మడానికి తెలంగాణ ప్రజలు పిచ్చోళ్ళ. वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR कड़पा ज़िले में 3 लग्जरी होटल्स का संग बुनियाद रखा, जिनके मुजमला 2 होटलें विशाखापट्टनम और तिरुपति में तामीर की जाएंगी। गंडीकोटा में संग बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आला जगन ने बताया कि एक सयाहती मुकाम में तब्दील हो सकता है और 500 ता 800 रोज़गार के मौक़े भी पैदा किए जा सकते हैं। वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने ओबराय ग्रुप के सरबराह विक्रम ओबराय से ख्वाहिश की कि वो गंडीकोटा में गोल्फ कोर्स कायम करने के सिलसिले में भी इक़दाम करें और हुकूमत उन्हें मुकम्मल ताउन पेश करेगी। సూపర్ లగ్జరీ రిసార్ట్ కట్టడం అంటే దాదాపుగా కలోకియల్గా మాట్లాడాలి అంటే 7 స్టార్ హోటల్కు 7 స్టార్ హోటల్ తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇలాంటి గ్రూప్స్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఇలాంటి హోటల్స్ కనుక కట్టడం మొదలు పెడితే గండికోట అన్నది గ్లోబల్ మ్యాప్లోకి, టూరిజం మ్యాప్లోకి తీసుకొని పోగలుగుతాం. ఇలాంటి చైన్ రావడం వల్ల అటు తిరుపతిలోనూ కూడా ఒక ఇలాంటి హోటలే వస్తూ ఉంది, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇలాంటి హోటలే వస్తూ ఉంది, గండికోటలో కూడా
ఇలాంటి ఒక మంచి హోటల్ ఇక్కడ గొప్ప హోటల్ కూడా వస్తూ ఉంది. వీటి అన్నిటి వల్ల కడప జిల్లాను గండికోట రెండు కూడా అంతర్జాతీయ మ్యాపుల్లోకి ఖచ్చితంగా ఎక్కుతుంది అని చెప్పి సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నా. ఈరోజు జిల్లాలో ఇటువంటి అభివృద్ధి అన్నీ కూడా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు, ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు జిందాల్ వాళ్ళతో ఇదే జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోనే ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ మనం ఏదైతే కలలు కన్నామో, ఇక్కడ ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రావాలి, మన పిల్లలకి ఇక్కడే ఉద్యోగ అవకాశాలన్నీ కూడా రావాలి, ఎక్కడికెక్కడికి కూడా రాకుండా ఇక్కడే మన పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలన్నీ కూడా అందుబాటులోకి రావాలి అని ఏదైతే మనం కలలు కన్నామో, దశాబ్దాలుగా కలలు కన్నా ఆ కలను నిజ చేస్తూ నీరుడు నేను వచ్చినప్పుడు ఆ కార్యక్రమానికి కూడా శంకుస్థాపన, ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కూడా ఈ జూలై 15వ తారీఖున ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లియరెన్సు వైఎస్ఆర్ స్టీల్ కార్పొరేషన్కు ఎన్వైర్న్మెంటల్ క్లియరెన్స్ కూడా ఈ జూలై 15th వస్తూ ఉంది. దాని తర్వాత యుద్ధ ప్రాతిపదికన అక్కడ కూడా పనులన్నీ కూడా ఇప్పుడు కడతా ఉన్న వేగం కన్నా రెట్టించిన వేగంతో అక్కడ కూడా పనులు వేగంగా జరగడం మొదలుపెట్టాయి. रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना बीजेपी रुकन असम्बली की जानिब से ये दावे किए जाने के बाद कि ज़िमनी इंतखाबात में 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, किसी मरकज़ी एजेंसी ने तहक़ीक़ात को यकीनी नहीं बनाया। उन्होंने बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत पर तंज़ करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त मरकज़ी एजेंसीज़ कहाँ हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी MLA रघुनंदन ने दावा किया है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में साबिक़ रियासती सदर बंडी संजय को ज़िमनी इंतखाब के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए दिए गए थे। वज़ीर KTR ने सवाल किया कि बीजेपी रुकन असम्बली की जानिब से किए गए दावे के बाद क्या तहक़ीक़ात की गई और कितनी नोटिसें जारी की गई, इस बात की वजाहत होनी चाहिए। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ मनादिर में इस सिलसिले में खुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत सिकंदराबाद में वाक़ उज्जैनी महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा का अहतमाम किया गया, जहाँ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने ख़ानदानी अफराद के हमरा पहुँचते हुए बोनम पेश किया। वज़ीर आला के हमरा उनकी अहलिया शोभा और दुख्तर के कविता भी मौजूद थी। रियासती वज़ीर T. श्रीवास यादव हमेशा की तरह इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे, जबकि कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने पुलिस इंतज़ामात की निगरानी की। ख़ुद उन्होंने भी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर पहुँचने वाले दीगर अहम क़ायदीन में गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, मरकज़ी वज़ीर G. किशन रेड्डी, वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर शामिल थे, जिन्होंने मंदिर में बोनम पेश किया।
क़ानून के पासदार खुद बसा औक़ात क़ानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद आवाम में ये एहसास पैदा होता है कि ऐसे हालात की वजह से किस तरह आवाम में डिसिप्लिन पैदा होगा। ऐसा ही एक मंजर हफ्ते की शाम चादरघाट ता मलकपेट रोड पर देखने में आया, जहां 3 पुलिस अहलकार एक बाइक पर खुलेआम क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे थे। ताहम ना कोई ट्रैफिक पुलिस अहलकार और ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले तिरुपति में हुए सड़क हादसे में 5 अफराद फौत हो गए। श्रीकालाहस्ती में पेश आई सड़क हादसे में एक SUV तेज़ रफ्तारी के दौरान ट्रक से जा टकराई और कार में सवार 4 मर्द और 2 ख़वातीन फौत हो गई, जबकि एक शख्स ज़ख्मी हुआ है, जिसे बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के लिए आवाम की जानिब से दी गई दरख्वास्तों को नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवा रहे हैं और चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने 26 दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा चेक्स की तकसीम मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अमल में लाई, जिनकी जुमला मालियत 8,12,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। लोक जनशक्ति के सदर चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी सतह पर एक इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें आने वाले इंतखाबात से मुतालिक लाहे अमल पर गौर व खौस किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी मज़ीद इजलास मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें BJP से इत्तेहाद पर फैसला लिया जाएगा। वो पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। किसके साथ होगा इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पर न लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके शिवसेना के लीडर संजय राउत ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी राजस्थान में कांग्रेस पर नहीं बल्कि BJP की हुकूमत पर ही तनकीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लूट और छूट की हुकूमत है, जो कल तक लुटेरे थे आज BJP में शामिल हो चुके हैं। ये खुद के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस का नाम गलती से लिया है। लूट के और झूठ की दुकान क्या है महाराष्ट्र में आकर देखिए प्रधानमंत्री जी। लूट करने वाले और झूठ बोलने वाले का राज छत्रपति शिवाजी महाराज
ये राज्य में चल रहा है और आपने चलाया है। कल तो जो लुटेरे थे, झूठेरे थे, वो अब आपकी पार्टी के नेता बन गए, मंत्री बन गए। तो किस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, कहाँ 2-4 स्टेट हो गए। आरजेडी के लीडर मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के अराकीन असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, मगर वो कैडर को शामिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक लफ्ज़ नहीं कहा और उनकी पार्टी के अराकीन उन्हें मणिपुर से मुताल्लिक़ एक लफ्ज़ कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ कि अजित पवार हूँ, प्रफुल्ल जी हूँ, इनकी पहचान किस बात से? घड़ी, शरद पवार, एनसीपी, उसके इतर तो कोई पहचान है नहीं। सच तो ये है और ये स्वीकार करना चाहिए। और मेरा अभी भी मानना है, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि आपने उद्धव जी की पार्टी के सांसद और विधायक ले लिए, शरद जी की पार्टी के सांसद और विधायक ले लिए, अब कैडर नहीं ले पाओगे। पार्टियां तो फिर से सांसद विधायक नए लोगों को बना देगी, लेकिन ये जो लोग गए हैं, क्योंकि इन सब के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में बड़ी विस्तार से टिप्पणी की थी और उसके 4 दिन के अंदर ये हो रहा है ना, तो इसको टूट नहीं कहते हैं, इसको गाइडेड टूर कहते हैं। इसके पीछे बीजेपी है तो जनता तो प्रतिकार कर ही देगी। मगरबी बंगाल के बीजेपी एमपी खगेन मुर्मू ने मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी अराकीन की जानिब से ही बूथ को लूटा गया। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रांग रूम से बैलेट बॉक्सेस लापता हैं, कई बैलेट बॉक्सेस मिक्सिंग किए गए हैं जो मिले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी अराकीन छापामार कार्रवाई करते हुए बैलेट बॉक्सेस को गायब कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मगरबी बंगाल में दोबारा पंचायती इंतखाबात मुनक्किद करने की मांग की है। जिला परिषद का जो प्रत्याशी वो तीनों थी, यहाँ पे कांग्रेस का भी थी, तो हम यहाँ पे आके देखा जो एक बूथ का पूरा जो बैलेट बॉक्स वो नहीं है, यहाँ पे मिसिंग हो गया। अभी तक मैं कह सकता हूँ, अभी तक वो मिसिंग बैलेट बॉक्स यहाँ पे अभी तक नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या है, 217 नंबर जो पोलिंग स्टेशन का बैलेट बॉक्स लेके यहाँ का एक उसी पोलिंग स्टेशन। बिहार में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। मुल्क में होने वाले अगले आम इंतखाबात में 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में तमाम अहम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंतखाबात से पहले बीजेपी अपना इत्तेहाद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी अपने पुराने दोस्तों से राब्ता करने की भी कोशिश कर रही है। इस एपिसोड में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नीतानंद रॉय ने एलजेपी रामविलास की कौमी सदर चिराग पासवान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इत्तेहाद के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नीतानंद रॉय बिहार में एनडीए को वसअत देने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो हल्के के रहनुमाओं से मुसलसिल मुलाकातें कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि ये हमारा पुराना घर है, जब हम मिलते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। रामविलास पासवान और बीजेपी ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। भाई, यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। आज खुशखबरी आ जाएगी, खुशखबरी सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर सब एक साथ हो गए। हम श्रीनगर में मुसलसिल बारिश की वजह से दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से तजावज़ कर गई है। पानी घरों में दाखिल होने लगा है और मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। में पानी चढ़ गया है, उससे बहुत खतरा है। पानी खतरे से ऊपर है और इनका गवर्नमेंट के अपील है, इनके साथ इंसाफ करो, क्योंकि ये बेचारा गरीब लोग है। हाँ, तो लोग कितने डरे हैं? कल से बहुत डरे हुआ है, पानी से ज़्यादा डरे हुआ है। हाँ, पंजाब के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। अम्बाला के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। आम जिंदगी यहाँ मुतासिर देखी गई। लोगों ने कहा कि पानी की निकासी के लिए इंतजामात नहीं है और उनके घरों में पानी दाखिल हो रहा है। मेरा नाम वीरेंद्र है, अम्बाला कैंट हाउसिंग बोर्ड्स के निवासी हैं हम लोग, और यहाँ पे आज बारिश जो है बहुत अच्छी बारिश हुई है और सुबह से अभी तक चल रही है। बट बारिश से गर्मी में तो
निजात मिल गई है लोगों को, बट पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पे खड़ा है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू के खटवा में पानी के तेज़ बहाव में 16 अफराद फंस गए। औज नदी में तेज़ बहाव के बाद 16 अफराद यहां फंस गए हैं। इब्तदाई मदद के बगैर 6 अफराद को बचा लिया गया, जबकि दीगर अफराद को बचाने के लिए मुहिम जारी है। बीएसएफ, पंजाब फ्रंटियर और पंजाब पुलिस के दस्तों ने ज़िले अमृतसर के सरहदी गांव कक्कड़ में काश्तकारी के खेतों से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। बाज़ है कि पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन के ज़रिए मंशियात भेजी जाती है। यहाँ कई बार ड्रोन्स को पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कोल्लू में मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदियों में पानी का तेज़ बहाव देखा गया। 12 घंटे से मुसलसल बारिश यहां रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकशी के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। 9 और 10 तारीख को होने वाली यात्रा को भी मनसूख करने की इल्तिजा की गई है। ब्यास नदी चढ़ गई है ना। हिमाचल प्रदेश के कोल्लू बस स्टैंड के करीब से बहने वाली दरिया ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। यहाँ पानी का तेज़ बहाव देखा गया। मूसलाधार बारिशों के बाद यहाँ मौसम ख़राब हुआ है और कई दरियाओं में पानी का तेज़ बहाव देखा जा रहा है। कई रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि ज़मीन खिसकने के भी वाक़यात सामने आए हैं। उत्तराखंड के ज़िले ठहरी में एक गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें 11 मुसाफिरीन सफ़र कर रहे थे। इनमें से 5 मुसाफिरीन को बचा लिया गया, जबकि दीगर 6 की तलाश जारी है। मानसून पहले ही आ चुका है, इसलिए बारिश से मुतालिक परेशानियां, चाहे वो ट्रैफिक की खराबी, लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहरों का बंद होना या नशेबी इलाकों में सैलाब से लोगों को रिलीफ कैंपों में जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश जारी रहने की तवक्को और कोई राहत नज़र नहीं आती। इस वक्त मुल्क भर में बारिश हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, कश्मीर से लेकर केरला तक बारिश की पेशकशी की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। ताहम ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि 10 जुलाई से बारिश की शिद्दत में कमी आ सकती है। कौमी राजधानी दिल्ली और नोएडा के अलावा गाजियाबाद जैसे मलहका इलाकों में भी बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने 9 जुलाई बरोज़ इतवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है। शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में शदीद बारिश के नतीजे में गुज़िश्ता 2 दिनों में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिश की पेशकशी की है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है।
IMD ने कहा कि एक मगरबी खलल शुमाली हिंदुस्तान पर गालिब रहा, जिसकी वजह से कल बारिश का शदीद सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली समेत सीज़न की पहली बारिश हुई है। पानी जमा होने की वजह से कौमी राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम हो गया। शहर में 24 घंटों में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली और इससे मलका इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश जारी है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में पानी भर जाने और बिजली के बंदिश का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक दीवार गिर गई, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला तो नहीं मिली और दिल्ली ईस्ट में यह हादसा पेश आया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार का आगाज। वज़ीर आला KCR और वज़रा ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ खुसूसी पूजा में शिरकत की। रिवायती तौर पर बोनम पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर झूठ का पुलंदा। रेलवे रिपेयर शॉप मंजूर करते हुए तेलंगाना अवाम का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर KTR की मोदी पर तनकीद। YSR कल्पा जिले में वज़ीर आला जगन ने लग्जरी होटल्स का रखा संगे बुनियाद। रोजगार के मौक़े फराहम करना आंध्रा हुकूमत का मकसद। वज़ीर आला जगन का बयान। जिला तिरुपति में सड़क हादसा, 6 अफराद बरसरे मौका फौत। SUV ट्रक से जा टकराई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।